Exactly. Now, Doppler effect is a nice tool for identifying whether whether a source of sound is moving away from you or coming towards you. You might have observed this when you are moving on a road. Even if a car is approaching from your back or receding away from you, you can listen to it without observing or without seeing it. Right? How? By understanding the apparent pitch, that is the frequency. So whenever there is a moving source of sound, the pitch becomes different at different instants of time. That helps us to identify whether it is coming towards you or receding. There are many situations on which we can apply the Doppler's effect. So Doppler's effect basically tells you what will be the apparent frequency for a given real frequency. Okay. So there can be various situations. The first situations we will discuss with a moving source. So say this is source and say this is the observer or listener, whatever you say. Alright? Now, if the source is at rest and the observer is also at rest, then the observed frequency is exactly same as the source frequency. Source frequency or observed frequency same hota hai. Let's write this down. When both observer and source are at rest, then the observed frequency is same as source frequency. Okay? What happens? Source, first case we are doing moving source towards observer. So this is case 1. Moving source towards observer. Kartika move korche? Observer. So if the source is moving towards observer, then what happens? Listen to this very carefully. Stop writing. What happens? Say I take some values for you to work properly. Okay? So say the velocity of sound is v, okay, and it is 330 meters per second. Alright? And velocity of source be Vs, and say it is 10 meters per second. That's actually a very large velocity, very strong velocity. And observer is at rest. Velocity of observer V0 is 0. Velocity of observer move nahi kar raha hai. Alright? And say the source frequency F naught, say this is F naught, the original frequency, is say 100 Hertz. What does this mean? What is the definition of frequency for waves? Number of oscillations हम लोग SHM के लिए बोलते हैं, ठीक है, या oscillations के लिए बोलते हैं. But for waves, we say this is the number of waves crossing any particular point in 1 second. 1 second में कितना waves are crossing that point? That is what we call the frequency. Is that clear? Do you remember this? 1 second में कितना waves? How many waves are crossing one particular point? Now listen to it very carefully. When both observer and source were at rest, दोनों rest में था, तब ये source कितना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है? 100 हर्ट्ज. ऑलराइट? एंड से कि ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग एग्जैक्टली 330 मीटर लेते हैं. एग्जैक्टली कितना लेते हैं? तो 1 सेकेंड बाद यहां से जो साउंड निकलेगा वो यहां पहुंचेगा,
Why? Because the velocity of sound is 3 meter per second. Can you understand this? हाँ या ना? तो एक सेकंड बाद अगर हम लोग ये रीजन को ऑब्जर्व करेंगे, there should be exactly 100 waves between these 2 points. क्यों? Right, frequency 100 hertz है, मतलब एक सेकंड में 100 waves has originated from this. Yes or no? Yes, sir. Now, if it moving at rest, moving source, then say when it starts, originally the distance between them was how much? 330. But after 1 second, what will happen? The distance will become how much? 320 meters. Why? 10 meters. What is the velocity of source? 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकंड. तो एक सेकंड में वो खुद भी मूव करके आया होगा सामने, और अभी उसका और सोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 320. लेकिन जब वो सामने आ रहा है, इट हैज ऑलरेडी रिलीज्ड हाउ मेनी वेव्स? 100 वेव्स. तो पहले जो 100 वेव्स 330 मीटर में स्प्रेड हुआ था, अभी वही 100 वेव्स कितना मीटर में स्प्रेड हुआ है? 320. It will spread over the 320 meter length. So what happened to the waves? Squeeze हो गया है, amplitude change नहीं हुआ है, amplitude change नहीं हुआ है. Frequency. हाँ, it has been squeezed. So squeezed का मतलब क्या हुआ कि frequency right, because अभी वो हाँ मतलब पास आने मतलब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ वेव्स जो है वो सेम डिस्टेंस पे ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स आ जा रहा है, मतलब उसका वेवलेंथ छोटा हो जा रहा है. इज दैट क्लियर? सो let the original wavelength be lambda. Therefore, the new wavelength is equal to, देखो ये मैंने वैल्यूज लिया था ना, अभी हम लोग वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं. ये वैल्यूज समझने के लिए थोड़ा अच्छा है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? न्यू वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट? ये जो डिस्टेंस 320 मीटर कहां से आया था? ये से ये सब्ट्रैक्ट किए थे ना. सो इट इज v माइनस vs बाई लैम्डा, सॉरी बाई फ्रीक्वेंसी. हाँ या ना? न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश इज इक्वल टू v माइनस vs बाई फ्रीक्वेंसी. दैट गिव्स यू द न्यू वेवलेंथ. सो देयरफॉर न्यू ना बोल के इसका एपरेंट बोलते हैं. एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हम लोग तो कुछ सोच नहीं रहे ना कि ये स्क्वीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वो तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं. तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, राइट? v इक्वल टू एफ लैम्डा. यस और नो? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. सो f विल बी इक्वल टू v बाय लैम्डा. सो एपरेंट वेवलेंथ f डैश इज इक्वल टू v बाय लैम्डा डैश. मतलब अभी जो एपरेंट वेवलेंथ है, हाँ वो v बाई लैम्डा डैश हुआ ना, तो ये लैम्डा डैश का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे. लैम्डा डैश का वैल्यू यहां पर पुट करने से क्या मिलेगा? v बाई v माइनस vs इंटू f. सो दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू v बाई v माइनस vs. समझ में आया? सो ऑब्वियसली v माइनस vs छोटा है, v बड़ा है. So f dash will be greater than f. Is that clear? And moving source away from observer क्या हो जाएगा? Right. Observer, moving source away from observer, f dash will become f into v by vs plus v plus vs हो जाएगा. नीचे पड़ेगा. राइट? क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. सोर्स अगर बाहर दूर की तरफ जाएगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. क्लियर? जल्दी से बना लो क्विकली. अच्छा, listen, concentrate. So what we observe from here, when the source moves towards observer, the apparent frequency increases. But when the source moves away from the observer, the apparent frequency decreases. Now,
what will happen if the source is at rest? Moving observer towards the source. मतलब source is now at rest, but observer is moving. Now frequency क्या होगा? तो फिर ऑब्जर्व कैसे चेंज कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी डॉपलर तो बोल रहा है कि जैसे रिलेटिव डिस्टेंस घटेगा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, लेकिन वो कैसे? देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वेवलेंथ स्क्वीज नहीं होता है। सोर्स जहां पर मूव करता है वहां पर वेवलेंथ स्क्वीज होता है, लेकिन अगर सोर्स रेस्ट में है तो वेवलेंथ स्क्वीज नहीं होता है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द किसका? वेव का। देखो ये सोर्स है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वेव जनरेट कर रहा है। कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, राइट? साउंड वेव्स। अब ऑब्जर्वर जब रेस्ट पे था तब वही v वेलोसिटी उसको क्रॉस कर रहा था इन 1 सेकंड से 100 वेव्स ये जनरेट कर रहा है, तो वही 100 वेव्स उसको क्रॉस कर रहा है इन 1 सेकंड। नाउ इफ द ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, तब क्या होगा? सेम नंबर ऑफ वेव्स ही क्रॉस करेगा उसे। क्या होगा? हाँ, तो टुवर्ड्स हो जाएगा तो क्या सर क्या अच्छा एक चीज मुझे बताओ, कभी देखा है तुम लोगों ने जब तुम रास्ते पे जाते हो उधर से अगर कम स्पीड में भी कोई गाड़ी आ रहा होगा, तुम जब गाड़ी के अंदर रहते हो तो लगता है वो बहुत ज्यादा स्पीड में आता है। क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कम क्यों होगा? बोलिए। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि साउंड इधर आ रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? इधर आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज v प्लस v0। समझ आया क्या बोले? तो यहां पर कोई वेवलेंथ स्क्वीजिंग नहीं होता है, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी बन जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द साउंड बिकम्स कितना? v। अभी जस्ट वी कैन गो फॉर अ यूनिटरी मेथड के। यूनिटरी मेथड क्यों? देखो पहले f नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा था फॉर व्हाट वेलोसिटी? v वेलोसिटी। सो फॉर velocity v, the frequency is f. For velocity unit, the frequency is f by v, and for velocity v plus v naught, the frequency is f into v plus v naught by v। ठीक है सर? सो देयरफॉर f डैश इज इक्वल टू f इंटू v प्लस v नॉट बाई v। ये याद रखना, तब कभी मिस्टेक नहीं होगा कि जब भी रिलेटिव डिस्टेंस घटता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑलवेज बढ़ जाता है। वेन एवर द रिलेटिव डिस्टेंस डिक्रीजेस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इंक्रीजेस, कभी डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है? सो ये v प्लस v नॉट बाई v होगा। एंड पार्ट 4, मूविंग ऑब्जर्वर away from source, f dash is equal to f into v minus v naught by v होगा। मतलब वहां पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज। नहीं वो नहीं गया, जल्दी से लिख लो, इसका लास्ट पार्ट बाकी है। Well, now let's come back. See what happens when both source and observer moves. जब source और observer दोनों ही मूव करता है, then f dash is written as f into v minus v0 by v plus v minus vs। हाँ राइट, मूव किधर कर रहा है उसके लिए हम लोग जब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज अ कंबाइंड फॉर्मूला,
वहां पर हम लोगों को एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा साइन कन्वेंशन है। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो बताओ साउंड वेव कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा? टुवर्ड्स द राइट। सो वी टेक दैट डायरेक्शन एज पॉजिटिव। द वेलोसिटी ऑफ साउंड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या लेंगे? और उसका ऑपोजिट कुछ भी होगा तो उसे हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है। सो साइन कन्वेंशन लिख लो। साइन convention along the direction of velocity of sound is positive and ভালো লাগে তো opposite to the direction is এই তুই ক্যান্টিনে listen to this very carefully. এই ফর্মুলাটার উপর বেস করে কোশ্চেন আসবেই, and if you miss out on the sign convention it will be wrong. So listen to it very carefully. क्वेश्चन है सर, अगर सोर्स इधर रहता तो हाँ, तो मैंने वेलोसिटी, मैंने साइन कन्वेंशन सोर्स और ऑब्जर्वर के बेसिस पे बनाया क्या? कहीं पर सोर्स या ऑब्जर्वर लिखा हुआ है? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो सोर्स को इधर ले लेंगे तो इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। As simple as that. समझ आया? So it does not matter whether source is on a particular side or not, because we didn't mention the sign convention with respect to source and observer. We mentioned the sign convention with respect to the velocity of sound. Is that clear? Yes, Of course, देखो, now listen to this very carefully. Yes, sir. सोर्स अगर दूर जा रहा है या पास जा रहा है उसके हिसाब से क्या होगा? देखो, अगर मान लो सोर्स जो है it is moving towards the observer, so velocity of source will be positive, vs will be taken as positive, and अगर सोर्स ऑब्जर्व से दूर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो वो साउंड का वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। समझा? Yes, sir. और उसके हिसाब से हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो दिस इज v। So when you use this formula, you have to use the sign convention. ये याद रखना, अदरवाइज पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आंसर्स कुछ मैच नहीं करेंगे। क्लियर? Yes, sir. देखो, एक सिंपल सा सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। मान लो सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहा है, क्या आ रहा है? राइट। सो से दिस इज vs एंड दिस इज vo। तो बताओ vs पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। और vo नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यही वाला सिचुएशन क्रिएट होगा, सिर्फ v के जगह में v माइनस vs आ जाएगा। तो द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी विल बी हायर। यस सर। क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है डिनोमिनेटर, तो इसीलिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी हायर व्हेन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। और अगर दूर जाएंगे तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर। क्यों? अगर ये इधर होगा और ये इधर होगा, vs नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और vo पॉजिटिव हो जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा। तब क्या होगा? ऊपर वाला कम होगा, नीचे वाला, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी लेस। यस सर। क्लियर? यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। That's all.